भावो नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते सतः भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुन्तास् उभयोरुपि दृष्टुन्तास् दृष्टोन्तास् उभयोरपि दृष्टुन्तास् अपि दृष्टोन्तास् अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अनयोस्तत्त्वदृष्टभिः उभयोरपि दृष्टुन्तास् उभयोरुपि उभयो अपि दृष्टोऽथास् अन्ययोस्तत्त्वदर्शिभिः अन्योस्तत्त्वदृष्टभिः त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः ना ना never असतः असतः of the non-existent of the non-existent असतः असत देखो सत मतलब ट्रुथ असतः मतलब जो ट्रुथ नहीं है फॉल्स है जो है ही नहीं असत मतलब समझ में आ गया तमसो माता जी वैसे सत मतलब जो है असत मतलब जो है ही नहीं ठीक है विद्यते विद्यते there is भावः endurance ना never अभावः changing quality विद्यते there is सतः of the eternal वयोः of the two अपि verily दृष्टः observed अन्तः conclusion indeed अनयोः them तत्व of the truth दर्शिभिः by the seers translation by Srila Prabhupada की those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent the material body there is no endurance and of the eternal the soul there is no change this they have concluded by studying the nature of both बहुत मजा आने वाला है इस श्लोक में इसमें ऐसे जो सीकर्स है ना जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता में स्कॉलर्स है उन्होंने स्टडी किया है किसका नेचर स्टडी किया है हाँ जो नॉन एग्जिस्टेंस है मटेरियल बॉडी और आत्मा इन दोनों को स्टडी किया है और इसके बारे में वो बताने वाले ठीक है पॉपॉट कौन पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो बस पढ़ो Can I read? Yes. There is no endurance of the changing body, that is the changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit.
By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by the classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Purana 2.1238, it is stated that Vishnu and his abodes all have self illuminated spiritual existence. The words existent and non existent refer only the spirit and matter, that is the version of all the seers of truth. शाबाश. विघ्नेश पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ. Yes, Mataji. This is the beginning of instructions by the Lord to the living entities who are bewildered by the bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves involves the re-establishment re-establishment छोटा है अभी, कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जूही है क्या हमारे पास? हाँ माताजी. पढ़ो. रीएस्टैब्लिशमेंट of eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the supreme personality of Godhead. One can understand the nature of supreme by through study of oneself. The difference between oneself and supreme being understood as the relationship between the part and the whole. In Vedanta Sutras, as well as in Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature, as it will be revealed in 7th chapter. Although there is no difference between energy and the energetic is accepted as supreme, and the energy or nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to Supreme Lord, as in case of master and the servant, or teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches us Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. शाबाश. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. तो हमने कल का श्लोक हमने देखा था कि कैसे जो महान आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्टेडी रहते हैं अपनी भक्ति के मार्ग पे या आध्यात्मिक मार्ग पे, आप समझ सकते हो, तो वो लोग कैसे वैकुंठ प्राप्ति करते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं. आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जितने भी सीयर्स ऑफ ट्रुथ है, मतलब जिन्होंने भी सच्चाई पता करने की कोशिश की है. सच्चाई क्या होती है? इटर्नल ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ. एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता. कोई अगर बोलेगा ना मैं नहीं मानता भगवान है, तो मानना मान, भगवान तो है ही है, छेड़खानी नहीं कर सकते. कोई बोलेगा मैं नहीं मानता सन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो मानना मान, हमें तो सन दिखता है. कोई कहेगा मैं नहीं मानता मून है. तो एब्सोल्यूट ट्रुथ ऐसे होता है जिसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते. तो जिन्होंने तो एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब परम सत्य की खोज की है. परम सत्य कौन है? कृष्णा. एक ही सत्य है इस पूरे ब्रह्मांड में, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में, कि कृष्णा वॉज देयर, इज देयर, विल ऑलवेज बी देयर. तो ये सत्य की जिसने खोज की है, उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि मटेरियल बॉडी होती है ना, उसमें देयर इज नो एंड्योरेंस. जो इटर्नल सोल होता है वो बदलता नहीं. देखो आप छोटे थे, न्यूबॉर्न बेबी, एज ए न्यूबॉर्न बेबी से आप क्रॉल करने लगे, आपको पेन हुआ क्या? हाथ लंबे हो रहे थे, पाँव लंबे हो रहे थे, तब हुआ क्या पेन? आप इतने बड़े हो गए हो आज,
और आज के बाद अगले 2 साल में आपकी हाइट और बढ़ेगी। आपको पेन होता है हाइट बढ़ते वक्त? नो माता जी। पहले आपकी उंगलियां छुट्टी छुट्टी होती थी, अभी थोड़ी सी लंबी हो गई है। पेन हुआ हड्डियों के जॉइंट्स में कभी? नो माता जी। तो यही स्पिरिचुअलिस्ट जिन्होंने भी सच्चाई की खोज की है ना, वो ये मानते हैं कि आत्मा कभी बदलती नहीं है, लेकिन जब आत्मा जिस शरीर में है वो शरीर बदलते वक्त भी उसको तकलीफ नहीं होती। बड़ी आसानी से शरीर जो है वो अपना रूप बदलता रहता है, साइज बदलता रहता है, उसका फॉर्म ही बदल जाता है। एक बेबी को देखो चबी चबी, उसके बाद डायरेक्टली एक बड़े इंसान को देखो और उसका बेबी वाला फोटो देखो, बेबी वाला फोटो देखो, एक लंबे इंसान और बेबी वाले फोटो में बहुत फर्क होता है। लेकिन क्या वो इंसान वहां बॉडी पेन के साथ पहुंचा है? नहीं। सो देर इज नो एंड्योरेंस टू द मटीरियल बॉडी। जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसको तकलीफ नहीं होती है, तो मैटर ही। पत्थर को तकलीफ होती है क्या? पत्थर को तकलीफ होती नो है? माता जी। नहीं ना। तो वैसे ही आत्मा जब बॉडी से ऐसे पास ऑन हो रही है ना, तो आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा की साइज नहीं चेंज हो रही। आत्मा की साइज क्या है? किसको पता है आत्मा की साइज कितनी होती है? बताओ। माता जी बहुत छोटी है। आप बताओ। Mataji, 10,000 part of our hair. Tip of the hair, cut it into 10,000 parts. Now take one part of that 10,000 part. एक छोटा सा पार्ट लो जो 10,000 parts में टिप ऑफ हेयर कट किया है, उसमें से एक पार्ट लो, उसको वापस 10 पार्ट में कट करो, उसमें से एक पार्ट निकालो, वो होती है आत्मा की साइज। तो एक आत्मा अगर हाथी के पिल्ले के एज से लेकर हाथी के बड़े हाथी होने तक भी वो आत्मा ट्रैवल करती है ना उसके शरीर में, तो भी आत्मा की साइज बड़ी 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 होती नहीं जाती। तो आत्मा का कोई बदलाव नहीं आता आत्मा में, चाहे शरीर बदलता रहता है, और शरीर भी बदलता है एफर्टलेसली विदाउट एनी एंड्योरेंस। तो ये सीयर्स ऑफ ट्रुथ जो है, जिन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ की खोज की, इन्होंने ये फर्क देखा है दोनों में। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है और पेनलेसली बदलता रहता है कंटिन्यूअसली। दिस दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडीइंग नेचर ऑफ बोथ। उन्होंने आत्मा की भी स्टडी की है और उन्होंने शरीर की भी स्टडी की है। अब समझ में आया? अंडरस्टूड? ये श्लोक का मतलब समझ में आया? अनयोस तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी भी क्या है? ट्रुथ बाय द सीयर्स। तत्वदर्शी भी, अगर आपको कोई चैलेंज करता है और कहता है ये क्या है आपकी भगवत गीता, वायलेंस सिखाती है, ये क्या है आपकी भगवत गीता पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, भगवत गीता तो ऐसा ग्रंथ है जो कहता है किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत देखो, ये वाली सारी चीजें आपकी भगवत गीता पढ़ाती है, हमें सब पता है। तो बोलना उनको, नहीं भगवत गीता में बहुत कुछ बताया है, शरीर के बारे में भी बताया है, आत्मा के बारे में भी बताया है, थोड़ा सा डाइव इन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें वो लोग स्कॉलर बताते हैं जिन्होंने बॉडी को भी स्टडी किया है और आत्मा को भी स्टडी किया है। बाकी सारे शास्त्र जो है ना, उसमें बॉडी को स्टडी करके बताया है, आत्मा को स्टडी करके कुछ नहीं बताया। लेकिन बॉडी की स्टडी पूरी तरह उसमें उतारी गई है बाकी शास्त्रों में। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पे आत्मा की स्टडी करके आत्मा के ऊपर पूरी भगवत गीता हमारी लिखी हुई है। ठीक है। सो परपट में प्रभुपाद कहते हैं कि देखो चेंजिंग बॉडी में कोई एंड्योरेंस नहीं होता, बताया है ना, देयर इज नो एंड्योरेंस ऑफ चेंजिंग बॉडी, हमने अभी डिस्कस किया। अब बॉडी हर मोमेंट में चेंज होती रहती है, एक्शन और रिएक्शन। डिफरेंट सेल्स इज एडमिटेड बाय मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो हमारे सेल्स कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, हमारे शरीर में असंख्य सेल्स है, अनलिमिटेड सेल्स है। आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो आपको लिवर और लंग्स, हार्ट, रिब्स, ये सारे अलग अलग पार्ट्स नहीं दिखेंगे। आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, ऐसा बड़ा सा माइक्रोस्कोप देखो और उसके नीचे एक बड़ी सी बॉडी अखंड देखो, तो आपको बस ऐसे दिखेगा जैसे छोटे छोटे सेल्स ना इधर से उधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे, इधर से जा रहे उधर से जा रहे, एक ही जगह पे ऐसे करके एक ही जगह पे। ऐसा लगेगा बहुत सारे सेल्स इकट्ठे आके किसी तरीके से इस शेप में फिट हुए हैं। उनको बांध कौन रहा है? स्किन नहीं दिखेगी आपको, लिवर अलग से नहीं दिखेगा, वो तो आप इसमें जाते हो ना एक्सरे मशीन में, उसमें दिखते हैं बॉडी पार्ट्स अलग अलग, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा।
माइक्रोस्कोप में आप देखोगे ना, आपको सिर्फ सेल 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 दिखेंगे, और आपको ऐसी पूरी बॉडी फुल ऑफ स्मॉल स्मॉल डॉट 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 की दिखेगी, अलग अलग कलर्स वाली। ना इंटरनल ऑर्गन होगा ना एक्सटर्नल ऑर्गन, स्किन भी नहीं दिखेगी, अंदर के बॉडी पार्ट्स भी नहीं दिखेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि इतने सारे सेल्स होते हैं बॉडी में, वो कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, ऐड हो रहे हैं, आपकी लेंथ बढ़ती जा रही है। जन्मे थे तो कितने, आप कितने छोटे थे, इतने से थे, आपकी जो हाइट होती थी वो इंच में मेजर की जाती थी कि बच्चा इतने इंच का हो गया और इतना किलो का हो गया, 3 किलो का हो गया बधाई हो, 4 किलो का हो गया बधाई हो। 3 महीने बाद माँ कहती थी हाय डॉक्टर डबल होना चाहिए था, 6 किलो होना चाहिए था, मेरा बच्चा 4.5 किलो, ये क्या करूं? तो डॉक्टर कहते हैं चिंता मत कर, बढ़ जाएगा। अब वो बच्चा ऐसे इंच इंच से बढ़ता जा रहा है, वजन वजन से बढ़ता जा रहा है, उसके सेल ऐड होते जा रहे हैं। उसके कौन ऐड कर रहा है बताओ? क्या बाहर से डस्ट पार्टिकल आके ऐड कर रहे हैं? ऐड कौन नहीं कर रहा है? माता जी कृष्णा। कृष्णा। और क्या आत्मा अपना ये स्वरूप छोड़ रही है? क्या आत्मा फूले जा रही है फ्रॉक की तरह? नहीं ना। नहीं माता जी। आत्मा तो वैसी है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि सेल्स एडमिट होते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहते हैं, तो ग्रोथ ओल्ड एज तक भी उसमें सेल्स का बदलाव आता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आता। बट द स्पिरिट सोल एग्जिस्ट परमानेंटली। आत्मा हमेशा से रहती है। मानो ये शरीर चला भी गया ना, ये सेल्स अचानक से गुम हो जाएंगे, आग के नीचे जल जाएंगे ये सेल्स, है ना। नहीं तो कोई कॉफिन में डालेगा, उसमें सड़ जाना है सारे सेल्स, वहां पे भी गायब हो जाना है, गैस में कन्वर्ट हो जाना है, सड़ जानी है बॉडी। तो ऐसे करके ये सेल्स तो चले जाएंगे, अब पे ही ऐसे गुम हो जाने हैं पूरे हवा में, एयर में। लेकिन अंदर की आत्मा जो है ना वो रहेगी। आत्मा को आपकी चिता पे भी नहीं जला सकते, आत्मा को हवा में उड़ भी नहीं सकती है आत्मा ना। आप बॉडी को पानी में डाल दो, कोई मरी हुई बॉडी है, सपोज कैट की है, चूहे की है, उसको पानी में डाल दो, आत्मा नहीं डूबेगी पानी में। उसको सुखाने की कोशिश करो, आत्मा नहीं सूखेगी, जो गीला नहीं होता वो सूखेगा क्या? सो स्पिरिट सोल एग्जिस्ट परमानेंटली, रिमेनिंग द सेम डिस्पाइट ऑल चेंजेस ऑफ बॉडी एंड द माइंड। कितना भी बॉडी बदल जाए, माइंड बदल जाए, तो भी आत्मा नहीं बदलती। ये सारे किसने किसने प्रूव किया है? कंक्लूडेड बाय स्टडिंग द नेचर ऑफ बोथ। किसने? सीयर्स ऑफ द ट्रुथ। इनको याद रखना, ये वो बड़े बड़े महर्षि है जिन्होंने पढ़ाई की है दोनों चीजों की, आत्मा की और शरीर की, और वो लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं। और कौन बता रहा है? हमारे भगवान हमें बता रहे हैं कि जिन्होंने ये स्टडी किया है वो लोग बता रहे हैं। तो भगवान ऐसे भी नहीं बोलते मैं बता रहा हूं इसलिए मान जाओ अर्जुन, मैं हिटलर हूँ, मैं राजेशाही है, ये बिल्कुल, मतलब मेरी बात मानो, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कृष्णा प्रूफ दे रहे थे कि देखो इतने सारे पढ़े लिखे ऋषि महर्षि है, वो सब लोग बता रहे हैं शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलती। तो कृष्णा इनडायरेक्टली अर्जुन को बता रहे हैं अरे बेवकूफ, सामने जो 64 करोड़ आर्मी है ना वो सारी आत्माएं हैं, इनको तुम नहीं काट सकते तलवार से, तुम क्यों रो रहे हो? तुम चाहो भी तो तलवार से, तुम्हारे बाणों से इनकी हानि नहीं कर सकते, इनका शरीर तो वैसे भी मर जाना है, तुम नहीं मारोगे तो मैंने तो इनको मार ही देना है, तो तुम अपना काम करो, अपने आप को कर्ता क्यों समझ रहे हो? तो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि शरीर तो बदलना ही है, इन लोगों ने आज नहीं तो कल शर्ट बदलते हैं वैसे, तो तुम ही मार दो इनको, बॉडी को ये कर दो, आत्मा की मैं देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, तो तुम्हारे हाथ से खून तो हो नहीं रहा है। सो बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग एंड सोल इज इटर्नल। नेचर से ही बॉडी हमेशा बदलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों की ना हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, बौने होते हैं लोग, तो उनकी जैसे बहू का था, और निषाद जन्मे थे ना वेन्ना के इससे, तो ये निषाद वगैरह ये लोग बहुत बौने थे मतलब सर्कस में बौना होता है ना वैसे। तो कुछ लोग कहते हैं इन लोगों की तो बॉडी नहीं बदली, नहीं इनकी भी बदलती है, ये लोग भी बूढ़े होते हैं, इनका भी लीवर खराब होता है, इनको भी हार्ट अटैक आता है, बॉडी तो बदलती रहती है, अंदर से बदलेगी या बाहर से बदलेगी, इनके भी बाल ग्रे होते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि बॉडी बदलना बंद हो जाती है। सो दिस कंक्लूजन इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑल क्लासेस ऑफ सीयर्स ऑफ ट्रुथ। जितने भी लोगों ने पढ़ाई की है ना, सबको पता है शरीर तो बदलता ही बदलता है। इसमें कोई साइंटिस्ट भी आर्ग्यू नहीं करेगा। आज तक एक साइंटिस्ट जन्मा नहीं है जिसने बोला है बॉडी नहीं बदलती, बॉडी एज इट इज। न्यूबॉर्न बेबी मरता भी 80 साल तक न्यूबॉर्न ही रहता है। आज तक साइंटिस्ट ने भी ऐसे नहीं बताया है। तो चाहे मटेरियल साइंटिस्ट मिले या स्पिरिचुअल आदमी मिले, ये ट्रुथ कोई नहीं बदल सकता।
इम्पर्सनलिस्ट हो या पर्सनलिस्ट हो। इम्पर्सनलिस्ट मतलब हमारे मायावादी लोग कहते हैं ना, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड, चलो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। वो लोग भी इसमें विश्वास रखते हैं कि शरीर बदलता रहता है कंटिन्यूअसली। विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि ऑल इज अबोर्ड्स हैव सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जितने भी वैकुंठ में, पता है वैकुंठ में जितने भी लोग जाते हैं ना, जो विष्णु की भक्ति करते हैं और वैकुंठ प्लैनेट्स में जाते हैं, सबको भगवान नारायण की तरह रूप मिल जाता है। जो तो नारायण भगवान के प्लैनेट पे जाएगा उनको 4 हाथ मिलने ही मिलने हैं, शंख चक्र गदा पद्म तो मिलना ही मिलना है उनके हाथों में, तो वो दिखने में भी नारायण भगवान जैसे होते हैं। उनको बस वो श्रीवत्स चिन्ह नहीं मिलता, कौस्तुभ मणि नहीं मिलता। तो ये लोग सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस होता है, इनकी बॉडी भी स्पिरिचुअल होती है, तो इनकी बॉडी नहीं बदलती। ये लोग बूढ़े नहीं होते वैकुंठ में, क्योंकि वहां की बॉडी सेल्स से नहीं बनी रहती। वो बॉडी और आत्मा दिखती ही ऐसी है, इस शेप की। गोलोक की गोपियां लोग है ना, तो उनका भी बॉडी सेल से नहीं बना होगा, उनका बॉडी पूरा आत्मा दिखने में ही इतने बड़े साइज का होता है। हाँ, यहाँ भौतिक जगत में आत्मा चुट्टू सा है, 10,000 पार्ट का 10 टाइम्स कट करो, उसमें से एक पार्ट निकालो। इधर आत्मा की साइज चुटकी सी है, वहां आत्मा की साइज प्रॉपर बड़ी है। वो प्रॉपर बड़े बड़े लोग होते हैं और उनका सेल्स से बॉडी नहीं बना रहता। तो कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पे भी बताया गया है कि वैकुंठ में भी ऑल हैव सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। द वर्ड एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट रिफर्स ओनली टू स्पिरिट एंड मैटर। आगे का श्लोक हम आगे का पॉपॉट हम बाद में करेंगे, ठीक है? या करें? किसी को नींद आ रही है? नहीं माता जी। Are you sure? माता जी नींद आ रही है। किसको आ रही है? माता जी मेरे को आ रही है। अच्छा, माता जी मेरे को भी आ रही है। चलो फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ऑलराइट, ये याद रखना, लेकिन जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे, जो ऋषि मुनि बता के गए हैं, उनका मैसेज हमेशा से याद रखना। ऑलराइट, तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा श्याम जय सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय छोटे भक्तों की जय के माता पिता की। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। गुड नाइट। हरे कृष्ण।